Good morning to one and all my dear students. Today we are going to continue with our chapter, that is the rat trap. As you all know that this chapter has been written by Selma Lagerlof, and in this chapter she talk about a vagabond who was making the rat traps by using the waste material and the wire. He got that material by bagging into the stores mm, or picking it from the farms. Still, the business was not very profitable for him, so he has to do both things, some sort of bagging and along with that, a petty thievery. And still, he was not able to make his body and soul together. His clothes were in rags and his cheeks were sunken. That means he was suffering from the malnutrition. And still, the hunger gleamed in his eyes. Nobody can imagine how boring his life was. Nobody can imagine how boring his life was. And one day, when he was plodding around the road, a series of thoughts came in his mind, and he was very amused with the thought that the whole world is a rat trap, and its cities and the villages are nothing but just a big rat trap, and it is providing various baits like riches, joy, shelters, and food. In the same manner, like the rat trap is offering cheese, pork to the mouse, and whosoever tried to touch that bait is trapped into the rat trap. जो भी इसको टच करने की कोशिश करता है वो उस rat trap में फंस जाता है. And the world, of course, was not very kind to him, so he was very pleased to think ill about the people who were not kind to him. And he was also amused to think about the people who have already trapped into the rat trap and those who are still circling around the bait. One dark evening, he was trudging along the road. Suddenly, he caught the sight of a little grey cottage by the roadside. Uh, in the hope to spend a night there, he knocked at the door and asked for the shelter. And um, instead of sore faces, like most of the time he had to face the sore faces because people they don't like the strangers. So instead of sore faces, uh, the owner was very kind to him because the old man was living there without his wife and child. So he was very happy to get someone to talk in his loneliness. So immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper to eat. He also shared his tobacco roll with him. Finally, the host got out a pack of cards so that they can both can play majolis with the guests until the bedtime. The old man was just as generous with his confidences. Means he easily shared all his confidences with him, all his secrets with him, and he told him that there was a time when he was working in the Ramjesu mill as a crafter, and he was also working in the fields as a labor. But now he had to now he had to only depend on his cow, and his cow is extraordinary, who gives milk every day for the creamery. And the last month, with the help of that cow, he was able to earn 30 corona. So because he thought that the stranger is not going to trust him, that's why he showed the 30 coronas to him. Next day, they both got up early in the morning, and because the after he was in a hurry to milk the cow. On the other hand, the vagabond, the trap, thought that it's not good to be at the bed if the owner had been woke up. Both of them they left the cottage together, but half an hour later, the rat trap peddler stood again before the door. He did not try to get inside, but instead he just smashed the window pane and stuck his hand and took out the pouch in which the 30 coronas were there. He took the money and thrust that money into his own pocket and left that place. He was not, so he decided not to go on the highway, and that's why he just changed his way and went into the forest.
For the first few hours, it doesn't cause any problem to him, but later on it became worse because that forest was very big and confusing, and he tried to make sure to walk along a definite direction, but the paths twisted back and forth so strangely that again and again he was coming at the same part of the forest. At all once he recalled his thoughts that the whole world is a rat trap. Finally he realized his mistake and he think that the those 30 coronas were the baits, and because he tried to touch them, that's why he has been trapped into the rat trap. Now he is in the thick forest, he won't able to come out of the forest. Finally he just he was tired and exhausted. यहाँ तक हमने किया था, इससे आगे हम लोग अभी करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इट वॉज लेट इन डिसम्बर. डार्कनेस वॉज ऑलरेडी डिसेंडिंग ओवर द फॉरेस्ट. मतलब वो दिसंबर के आखिरी दिनों की बात है, और जो अंधेरा था मतलब वो ऑलरेडी डिसेंडिंग मीन्स छा जाना. जो अंधेरा था वो ऑलरेडी जो है छा गया था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल्सो हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर, जिसकी वजह से जो खतरा बढ़ गया था और वो और ज़्यादा उदास हो गया था. ग्लूम मीन्स सॉरो और डिस्पेयर मीन्स डिसअपॉइंटमेंट. इसलिए उसकी जो उदासी थी और जो सैडनेस थी वो और ज़्यादा बढ़ गई थी. फाइनली ही सॉ नो वे आउट. आखिर में उसको कोई भी मतलब रास्ता दिखाई नहीं दिया. एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड. इसीलिए वो मतलब ग्राउंड के ऊपर लेट गया. टायर्ड टू डेथ थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड केम. वो बहुत ज़्यादा थक गया था. वो इतना थक गया था कि वो इसको ऐसा लग रहा था कि वो मरने ही वाला है, और वो अपने जो आखिरी कुछ पल थे उनके बारे में सोचने लगा. बट जस्ट एज ही लेड हिज हेड ऑन द ग्राउंड ही हर्ड अ साउंड, अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. लेकिन जैसे उसने जो अपना सिर था वो ग्राउंड के ऊपर रखा, उसको एक जो मतलब एक जोर जोर से थम्पिंग मीन्स थपथपाने की आवाज़ जो थी वो आना शुरू हो गई. ही रेज्ड साउंड अ हार्ड रेगुलर थम्पिंग. मतलब बार बार किसी चीज़ के थपथपाने की आवाज़ उसको आ रही थी. देयर वॉज नो डाउट एज टू व्हाट दैट वाज. अब उसमें उसको कोई भी शक नहीं था कि वो जो आवाज़ थी वो किसकी थी. ही रेज्ड हिमसेल्फ. उसने अपने आप को उठाया. दोज आर द हैमर स्ट्रोक्स. वो किसकी आवाज़ थी? मतलब जो हथौड़ा था उसके स्ट्रोक्स, मतलब हथौड़े मारने की आवाज़ थी. फ्रॉम एन आयरन मिल. किसी आयरन मिल से. ही थॉट. उसने सोचा. देयर मस्ट बी पीपल नियर बाय. ही समवनड ऑल हिज स्ट्रेंथ, गॉट अप एंड स्टैगर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड. उसको लगा कि आसपास ज़रूर ही कुछ लोग होंगे, इसीलिए उसने जितनी भी अपनी ताकत थी उसको इकट्ठा किया. वो उठा और स्टैगर्ड मीन्स लड़खड़ाते हुए, और वो लड़खड़ाते हुए मतलब उस डायरेक्शन में चलने लगा जिस डायरेक्शन से वो आवाज़ आ रही थी. द रामजेसो आयरन वर्क्स which are now closed down were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. कहते जो रामजेसो आयरन मिल है और वो मतलब कुछ सालों पहले ही वो जो है वो बंद हो चुकी है, और वो बहुत लंबा टाइम नहीं है जब वो बंद हो गई थी. उससे पहले वो एक बहुत बड़ा प्लांट हुआ करता था, बहुत बड़ी फैक्ट्री हुआ करती थी जिसके अंदर स्मेल्टर होता है, जिसमें कि जो आयरन है उसको पिघलाया जाता है. और रोलिंग मिल्स होती थी. रोलिंग मिल्स मतलब जिसमें मेटल की शीट्स बनाई जाती हैं. एंड अ फॉर्ज. और एक फॉर्ज होता था. फॉर्ज होता है मतलब एक रूम होता है जिसके अंदर मतलब जो आयरन है, क्रूड आयरन है, उसको पिघलाया और उसको शेप दी जाती है. तो उसमें एक फॉर्ज हुआ करती थी. In the summer time, long times of heavily launched barges and scows slid down the canal. Barges and scows बोट्स के लिए यूज़ किया गया है. फ्लैट जो बॉटम बोट्स होती हैं उसके लिए. कहते हैं जब समर टाइम आता था, जब गर्मियों के दिन आते थे, काफ़ी लंबी लाइंस में मतलब जो बड़ी बड़ी जो बार्जेस और स्काउस थे वो बहुत ज़्यादा उनको हैवीली लोडेड, बहुत ज़्यादा मतलब लोड करके वो कैनाल के थ्रू मतलब जाती थी. विच लेड टू अ लार्ज इनलैंड लेक. जो कैनाल किससे अटैच थी? एक लार्ज जो बड़ी लेक थी उससे.
मतलब कि जो समर टाइम था उसमें काफ़ी सारा जो मटेरियल था वो ट्रांसपोर्ट किया जाता था, वो एक्सपोर्ट किया जाता था, बोट से वो जाता था और थ्रू द मीडियम ऑफ कनाल वो जाता था. And in the winter time, the roads near the mill were black from all the coal dust which sifted down from the big charcoal crates. कहता है कि और जब विंटर टाइम होता था, जब सर्दियों का टाइम होता था, तो जितने भी रोड्स थी आसपास मिल के आसपास वो ब्लैक हो जाती थी, क्योंकि वो जो कोल का डस्ट था उसको उसमें शिफ्ट कर दिया जाता था. जो बड़े बड़े चारकोल के क्रेट्स होते थे, क्रेट्स होते हैं जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, जो चारकोल के क्रेट्स होते थे, उसको वहाँ पर मतलब फेंक दिया जाता था, जिसकी वजह से जो आसपास का एरिया होता था विंटर टाइम में वो बिल्कुल ब्लैक हो जाता था. During one of the long dark evening, just before Christmas, the master smith and his helpers sat in the dark forge near the furnace waiting for the pig iron, which had been put in the fire. कहता है कि ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग, उससे मतलब जो लंबी रातें होती हैं, लंबी रातें कब होती है, मतलब सर्दियों में होती है. तो वो कहता है कि एक लंबी रात को और क्रिसमस के टाइम से पहले जो मास्टर स्मिथ था और जो उसका हेल्पर था वो दोनों बैठे हुए थे डार्क फॉर्ज, जो वर्कशॉप थी, मतलब जहाँ पर वो काम करने का एरिया था, जहाँ पे ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है उसकी जो वर्कशॉप होती है ना, काम करने का एरिया होता है, उसको फौज पर बोलते हैं. कहते जो मास्टर स्मिथ था और उसका जो हेल्पर था वो अंधेरे फौज में बैठे हुए थे फर्नेस के पास, भट्टी के पास, वेटिंग फॉर द पेग आयरन. और वो किसके लिए वेट कर रहे थे? पेग आयरन के लिए, जो आयरन है वो पक जाए. विच हैड बिन पुट इन द फायर, जिसको कि फायर के अंदर डाला गया था, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, ताकि वो रेडी हो जाए, ताकि उसको किस में डाल सके? एनविल. एनविल में साँचा, जिसमें हम अगर उसको डालेंगे तो उसकी शेप आ जाएगी आयरन की, ताकि वो उसको एनविल में डाल सके. एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास एंड with a long iron bar, returning in a few moments, dripping with perspiration. perspiration होता है पसीना आ जाना. तो वो कहता है कि इवन नाउ एंड देन, बार बार मतलब उन दोनों में से कोई एक उठता था. स्टिर में हिलाना, वो जो मास था जो आयरन उसके अंदर डाला हुआ था उसको हिलाने के लिए वो बार बार उठते थे, और एक जो लंबे आयरन बार था उससे वो उसको हिलाते थे. और कुछ मोमेंट्स के बाद वो वापस आते थे, और जब वो वापस आते थे दे वर कम्प्लीटली मीन्स दे वर कम्प्लीटली पर्सपिरेटेड मीन्स स्वेटेड. वो पूरा मतलब स्वेटिंग हो जाती थी उनको, पूरा वो पसीने से नहा जाते थे. दो एज वॉज द कस्टम, ही वोर नथिंग बट अ लॉन्ग शर्ट एंड अ पेयर ऑफ वुडन शूज़. कहते हैं कि जैसे कि कस्टम है, जैसे कि उनका ट्रेडिशन होता है, उनकी ड्रेस होती है स्मिथ्स की, उसने कुछ भी नहीं पहना हुआ, सिर्फ एक लंबी सी शर्ट पहनी हुई है और नीचे एक पेयर ऑफ शूज़ पहने हुए हैं. ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉर्ज. कहता है कि मतलब हमेशा ही बहुत सारी जो आवाज़ें वो फौज में आती रहती हैं. द बिग बेलोज ग्रॉन एंड द बर्निंग कोल क्रैक. जो बड़ी बड़ी बेलोज हैं, जो बड़े बड़े बेलोज हैं वो ग्रॉन करते रहते हैं. बेलोज होते हैं मतलब काइंड ऑफ एयर बैग्स. जो बेलोज हैं वो क्या करते रहते हैं? बार बार ग्रॉन करते रहते हैं, गुर्राते रहते हैं. जो एयर बैग्स हैं उनमें से आवाज़ें आती रहती हैं. और या फिर जो बर्निंग कोल है, जो कोयला उसके अंदर जल रहा है, उसके क्रैक होने की जो आवाज़ें हैं वो वहाँ पर आती रहती हैं. द फायर बॉय shoveled charcoal into the maw of the furnace with a great deal of clatter. और जो फायर बॉय मतलब जिसकी ड्यूटी जो है वो आग को जलाने की है, वो शॉवल चारकोल मीन्स थ्रू फेंकना. वो जो चारकोल है उसको जल्दी जल्दी फेंकता है इन द मॉ ऑफ द फर्नेस. जो भट्टी है उसका जो माउथ है उसके अंदर वो बार बार जो मतलब कोयला है उसको फेंकता है, ताकि वो जो आग है वो कंटिन्यू रहे, वो उसी स्पीड से जलती रहे जिसमें कि वो जल रही है. विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर. क्लैटर मीन्स बहुत ज़्यादा शोर आ जाना. तो वो यही कहता है कि मतलब जो साउंड्स है वहाँ पे काफ़ी तरह फौज में काफ़ी सारी जो साउंड्स है वो आती रहती है,
चाहे वो मतलब एयर बैग्स की साउंड है या फिर वो जो कोयला है उसके क्रैक होने की साउंड है, या फिर जो फायर बॉयर बार बार जो चारकोल डाल रहा है मतलब फर्निश के अंदर बहुत नॉइज़ के साथ, या फिर उसकी साउंड है। तो इस तरह की साउंड जो है वो फॉर्ज में आती रहती है। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड a sharp north wind whipped the rain against the brick tiled roof। कहते हैं कि आउटसाइड रो द वाटरफॉल, और बाहर की तरफ जो वाटरफॉल है मतलब वो आवाज़ ही करता रहता है। एंड अ शार्प नॉर्थ विंड वेप, और जो शार्प मतलब जो तीखी नॉर्थ की तरफ से जो हवा चल रही है वो विप्ड करती है। विप मीन्स चाबुक की तरह आवाज़ करते हुए, और जो रेन है वो मतलब ऊपर जो ब्रिक टाइल रूफ है उसके ऊपर गिर रही है और इस तरीके से आवाज़ कर रही है जैसे कि वो वेप की आवाज़ आती है। यानी कि जो बाहर है वो वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है, और जो नॉर्थ विंड की वजह से जो रेन स्टार्ट हो गई है, ऊपर जो ब्रिक टाइल रूफ है उसके ऊपर वो रेन के गिरने की आवाज़ आ रही है। It was probably on account of all his noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge। कहता शायद यही कारण था, ये सारी आवाज़ें आ रही थी कि जो ब्लैक था उसको पता ही नहीं चला कि एक जो इंसान है उसने गेट खोला है और वो फॉर्ज के अंदर एंटर कर गया, उस वर्कशॉप के अंदर एंटर कर गया। अनटिल ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेस, जब तक कि वो जो आदमी था वो फर्नेस, वो जो भट्टी थी उसके पास जाकर खड़ा नहीं हो गया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attached to a forge by the glow of light which escaped through the sooty panes, and to come in the warmth themselves in front of the fire। कहते हैं कि श्योरली मतलब इसमें कोई भी शक नहीं है कि जो पुअर वैगाबॉन्ड्स है, वैगाबॉन्ड्स मीन्स वॉन्डरर जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते हैं, जो पुअर बेचारे वैगाबॉन्ड्स हैं उनके लिए इससे बेटर जगह नहीं हो सकती रात को रुकने के लिए, क्योंकि वो जो जगह है वो फौज से अटैच है और वहाँ पर जो लाइट है वो ग्लो करती रहती है, जिसकी वजह से बिकॉज इट्स अ टाइम ऑफ विंटर, वो विंटर का टाइम है, तो जो फौज है उससे बेटर प्लेस उनके लिए हो नहीं सकता है। एंड बाय द ग्लो ऑफ लाइट विच एस्केप थ्रू द सूटी पेंस, और वो जो ग्लो ऑफ लाइट है जो कि किससे आती है, सूटी पेंस। सूटी मतलब ब्लैकिश और जो डस्टी इन कलर है, जो वहाँ से मतलब जो रोशनी आती है धुंधली सी, उसके मतलब जो धुंधली सी वो रोशनी आती है वो उनको क्या कर देती है, कमिंग टू वार्म देमसेल्फ, और वो वहाँ पर आते हैं अपने आप को वार्म करने के लिए, और जो फायर है उसके आगे वो खड़े हो जाते हैं। कहता है कि श्योरली ये जो प्लेस है मतलब जो पुअर वैगाबॉन्ड है उनके लिए इससे अच्छी जगह नहीं हो सकती रात को रुकने के लिए क्योंकि वो जो फौज है वहाँ से हल्की हल्की रोशनी आती है जो कि मतलब डस्टी से कलर की है, और जो वैगाबॉन्ड्स है वो वहाँ पर आते हैं और अपने आप को वार्म कर सकते हैं ताकि वो जो फायर है उसके सामने खड़े होकर अपने आप को थोड़ा सा वार्म कर सके, बिकॉज इट्स द टाइम ऑफ दिसंबर, क्योंकि वो दिसंबर का टाइम है। द ब्लैकस्मिथ glanced only casually and indifferently at the intruder। जो ब्लैकस्मिथ था उसने इससे बहुत ही कैजुअल तरीके से उसकी तरफ देखा और बहुत ही इंडिफरेंटली मतलब उसकी तरफ उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। तो बहुत इंट्रूडर मीन्स जो बिना परमिशन के अंदर आ जाए। सो ही जस्ट ग्लैंस टुवर्ड्स हिम इंडिफरेंटली, उसने कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया इंट्रूडर की तरफ जो कि वहाँ पर घुस आया था। He looked the way people of this type usually did। उसने मतलब he looked the way people of this type usually did, with a long beard, dirty ragged, and with a bunch of rat traps dangling on his chest। मतलब वो उसके तरह के जो लोग थे उसको नॉर्मली वहाँ पर आते हुए देखता था, जिनकी की मतलब लंबी लंबी दाढ़ी होती थी और डर्टी गंदे से कपड़े होते थे, और काफ़ी सारे जो बंच ऑफ रैट ट्रैप्स है वो अपनी चेस्ट के ऊपर डैगलिंग मीन्स हैंगिंग, उसके जो रैट ट्रैप्स होते थे उनकी चेस्ट के ऊपर लटके होते थे। सो इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर द ब्लैकस्मिथ, वो उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। इस तरीके जो लोग थे वो वहाँ पर नॉर्मली आते रहते थे। सो ही लुक्ड एट हिम वेरी कैजुअली, इसलिए उसने उसकी तरफ बहुत ही नॉर्मल तरीके से बहुत ही इनडिफरेंटली देखा। He asked permission to stay and the master blacksmith nodded a haughty consent
विदाउट ऑनरिंग हिम विद अ सिंगल वर्ड। कहता है कि जो वैगाबॉन्ड था उसने वहाँ पे रुकने के लिए परमिशन मांगी, और जो मास्टर ब्लैक स्मिथ था उसने नॉड किया, उसने हाँ भरी, और मतलब बहुत गुस्से से, हॉटी कॉन्सेंट में उसने सिर्फ गर्दन हिलाते हुए बहुत गुस्से से उसको वहाँ पर रहने की परमिशन दे दी। विदाउट ऑनरिंग हिम अ सिंगल वर्ड मीन्स बिना उसको एक भी वर्ड कहे। द ट्रैम्प डिड नॉट से एनीथिंग ईदर। जो ट्रैम्प था उसने, ट्रैम्प मीन्स वैगाबॉन्ड जो वंडर था, उसने भी उसको कुछ नहीं कहा ईदर। ही हैड नॉट कम देयर टू टॉक बट ओनली टू वार्म हिमसेल्फ एंड स्लीप। कहता है वो वहाँ पर मतलब बातें करने के लिए नहीं आया था, वो वहाँ पर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो अपने आप को वार्म कर सके और वहाँ पर सो सके। इन दोज डेज द रामजसो आयरन मिल वॉज ओन्ड बाय अ वेरी प्रोमिनेंट आयरन मास्टर। कहता उन दिनों में जो रामजसो आयरन मिल थी उसको एक जो प्रोमिनेंट मतलब एम्बिशियस, जो एक एम्बिशियस आयरन मास्टर था, उसने उसको, वो उसका ऑनर था। हुज ग्रेटेस्ट एम्बिशन वॉज टू शिप आउट गुड आयरन इन द मार्केट। जिसका कि एक ही एम्बिशन था कि वो जो गुड आयरन, कि वो सबसे अच्छा जो आयरन है वो मार्केट में शिपिंग कर सके, उसको पहुंचा सके। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. इसलिए वो मतलब रात दिन वॉच करता था, देखता था कि जो काम है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। And at this moment he came into the forge on one of his 90 rounds of inspection. इसीलिए मतलब आज की रात, आज वही मोमेंट था जब कि वो फॉर्ज में आया था ताकि मतलब वो इंस्पेक्शन कर सके उस रात को, मतलब रात को राउंड पे आया था ताकि वो इंस्पेक्शन कर सके कि जो काम है वो प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है। Naturally, the first thing he saw was a tall ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet rags. Ragamuffin means a shabby clothed person. अब उसने सबसे पहले चीज़, नेचुरल था कि उसने सबसे पहले चीज़ वही देखी, एक बड़ा सा जो गंदे से कपड़ों वाला टॉल सा बंदा था, जो कि मतलब बहुत ही ईज़ मतलब कंफर्टेबली जो फर्नेस थी उसके पास मतलब बैठा हुआ था। उसकी जो रैग्स थे, उसके जो कपड़े थे, फटे पुराने कपड़े थे, उसमें से जो धुआं था, मतलब जो स्टीम थी वो निकल रही थी। The ironmaster did not follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. कहता है कि उसने जो आयरन मास्टर था उसको बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया, फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ। उसने जो ब्लैक स्मिथ था उसका बिल्कुल भी फॉलो नहीं किया। Who had hardly deigned to look at the stranger. डींग मतलब टू थिंक फिट, जिसको कि मतलब ये भी ठीक नहीं लग रहा था कि वो जो स्ट्रेंजर है उसकी तरफ एक बार भी देखें। तो मतलब उसने आयरन मास्टर की तरह नहीं किया। ही डिड नॉट फॉलो द एग्जांपल ऑफ द ब्लैक स्मिथ, मतलब जो लोहार था, जैसे ब्लैक स्मिथ था, उसने उसकी तरफ देखा भी नहीं, बहुत कैजुअली और इंडिफरेंटली उसकी तरफ देखा था। लेकिन जो आयरन मास्टर था उसने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, और मतलब वो जो स्ट्रेंजर था उसकी तरफ गया, वो ही वॉक क्लोज अप टू हिम, वो उसके पास गया। लुकड हिम ओवर वेरी केयरफुली, उसने उसको बहुत ध्यान से देखा। देन टोर ऑफ हिज स्लाउच हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस। उसके बाद उसने जो उसका स्लाउच हैट मीन्स जिसकी जो फ्लैक्सिबल ब्रिम होती है, मतलब वो जो धागा लगा हुआ होता है, उसने जो अपना स्लाउच हेड था उसको उतारा और उसको बहुत ही ध्यान से देखा ताकि उसको और ज़्यादा ध्यान से देख सके। But of course, it is you, Niels Olf. He said, how you do look. कहता है कि बट ऑफ कोर्स, लेकिन ऑफ कोर्स ये तुम ही हो नील्स ओल्फ, उसने कहा। एंड हाउ यू डू लुक, मतलब तुम कैसे दिखते हो। द मैन विद द रैट ट्रैप्स हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर एट रामजसो एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वॉज। अब जो मैन था रैट ट्रैप, मतलब जिसके पास रैट ट्रैप्स थे, अब उसको बिल्कुल भी नहीं पता था, उसने उस आयरन मास्टर को पहले कभी भी देखा नहीं था और उसको उसका नाम तक भी नहीं पता था। बट इट ऑकर टू हिम दैट इफ़ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रू विद अ कपल ऑफ कोरोनर। लेकिन उसने ये सोचा कि मतलब अगर ये इंसान मुझे जानता है, अगर मैं इसको ये दिखाऊंगा कि मैं इसका पुराना जान पहचान वाला हूँ, एक्वेंटेंस मीन्स जान पहचान,
कि मैं इसका पुराना जान पहचान वाला हूँ, तो शायद ये मेरी तरफ कुछ पैसे दे दे, मुझे कुछ हेल्प कर दे, कपल ऑफ करोनर में इस पैसे, ताकि ये मुझे कुछ पैसे दे दें. Therefore he did not want to deceive him all at once. इसलिए वो उसको बिल्कुल भी मतलब इसलिए वो उसको बिल्कुल भी धोखा नहीं देने के बारे में नहीं सोच रहा था एकदम से. उसने यही सोचा था कि मतलब वो बिल्कुल उसको यही दिखाएगा कि वो उसको पहचान वाला है. Yes, God knows things have gone downhill with me, he said. उसने कहा कि हाँ, जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ अच्छी नहीं रही, और थिंग्स हैड गॉन डाउन हिल विद मीन्स जो मेरी सिचुएशन थी वो अच्छी नहीं रही, मतलब ठीक नहीं रही, और भगवान जानता है इस बात को. जो वैगाबॉन्ड था उसने उसको रिप्लाई किया. यू शुड नॉट हैव रिज़ाइन फ्रॉम द रेजिमेंट सैड द आयरन मास्टर. तो आयरन मास्टर उसको कहता है कि तुम्हें रेजिमेंट से ना रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी. दैट वॉज द मिस्टेक. वो ये गलती की तुमने. इफ़ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम it never would have happened. Well, now of course you will come home with me. कहते हैं वही तुमने गलती की. अगर उस टाइम तुमने मतलब रिटायरमेंट नहीं ली होती और मेरी तरह सर्विस में बने रहे होते, तो शायद आज तुम्हें ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती. तो उसको ये कहता है कि चलो कोई बात नहीं, अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो. To go along up to the manor house, and he received by the honor like an old regiment comrade. That however did not please the Trump. कहता है कि मैनर हाउस में जाना. मैनर हाउस में लार्ज कंट्री हाउस, जो कि मतलब बहुत बड़ा घर होता है, जिसके आसपास काइंड ऑफ फार्म हाउस, जिसके आसपास लैंड होती है और बीच में घर बना हुआ होता है. कहता है कि उसके साथ मैनर हाउस में जाना, और वो भी मतलब ऐसे मैनर हाउस में जिसका जो ऑनर है वो रेजिमेंटल कामरेड है, क्योंकि वो मतलब आर्मी में था. तो ये जो आइडिया था वो बिल्कुल भी प्लीज़ नहीं कर रहा था ट्रम्प को. वो जो वैगाबॉन्ड था उसको मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये आइडिया कि वो उसके साथ वहाँ जाए. तो वो उसको मना कर देता है. कहता है नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट, ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म. कहता है नहीं, मैं इसके बारे में नहीं सोच रहा हूँ. और इसने उसकी तरफ बहुत ही मतलब अलार्म्ड, मतलब बहुत ही चौकन्ना होते हुए उसको कहा. ही थॉट ऑफ द 30 करोनर. To go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den. कहता है वो 30 करोनर के बारे में सोचने लगा जो उसने चुराए थे. कि वो सोचता है कि अगर मैं मैनर हाउस में जाता हूँ तो अपने आप को मैं क्या करूँगा, जानबूझकर मैं लॉयंस की डेन में, मतलब शेर की जो बांध है उसमें अपने आप को जानबूझकर डाल दूँगा. सो अगर वो ऐसा करता है, उसके साथ जाता है, तो दैट मीन्स ही जस्ट थ्रोइंग हिमसेल्फ इनटू द डेंजर. वो खुद को ही अपने आप को खतरे में डाल लेगा जानबूझकर. ही ओनली वांटेड अ चांस टू स्लीप हियर इन द फॉर्ज. उसको सिर्फ इतना ही चाहिए था कि वो वहाँ पर फौज में सो सके, एंड देन स्नीक अवे इन द conspicuously as possible. Sneak away means to go away secretly, चुपचाप से चले जाना. Unconspicuously means without being noticed. वो इतना ही चाहता था कि वो वहाँ पर रात को फौज में अपनी रात बिताए और चुपचाप से वहाँ से निकल जाए बिना किसी के नोटिस किए, बिना किसी के नोटिस में, बिना कोई उसको देखे, मतलब कोई उसको देखे से पहले वो वहाँ से निकल जाए चुपचाप से. The Iron Master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing. अब आयरन मास्टर को लगा कि वो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि वो एम्बेरस, मतलब शेमफुल फील कर रहा है कि उसने जो इतने गंदे से कपड़े हैं वो पहने हुए हैं, तो इसकी वजह से वो उसके साथ नहीं चलना चाह रहा. तो उसको कहता है प्लीज़ डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम दैट यू कैन नॉट शो योर सेल्फ देयर. उसने कहा कि मतलब तुम ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मेरा जो घर है वो इतना अच्छा है कि तुम वहाँ पर नहीं चल सकते, तुम अपने आप को वहाँ पर शो नहीं कर सकते. ही सेड एलिजाबेथ इज़ डेड एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड. माई बॉयज़ आर अब्रॉड एंड देर इज़ नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर इन माई सेल्फ. वो कहता है जो एलिजाबेथ है, मतलब एलिजाबेथ उसकी वाइफ है आयरन मास्टर की, तो कहता है जो एलिजाबेथ है वो ऑलरेडी मर चुकी है और तुमने सुना ही होगा. और जो मेरे बेटे हैं मतलब वो विदेश में सेटल है और घर पर कोई भी नहीं है. मेरी जो सबसे बड़ी बेटी है उसकी और मेरे सिवा घर पे कोई भी नहीं है. वी वर जस्ट सेइंग दैट इट वॉज टू बैड वी डिड नॉट हैव एनी कंपनी फॉर क्रिसमस. कहता है उसने मतलब वी वर जस्ट सेइंग, और हम लोग आपस में यही बातें कर रहे थे कि कितनी बुरी बात है कि हमारे पास क्रिसमस पे कंपनी देने के लिए कोई भी नहीं है.
Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster. तो कहता है कि तुम मेरे साथ आओ और मेरी हेल्प करो कि वो जो हम क्रिसमस का फूड है, जो मतलब क्रिसमस है, जो उसको अच्छे से एंजॉय कर पाए, और जो क्रिसमस का फूड है वो जल्दी से हम लोग ख़त्म कर दें, थोड़ा सा जल्दी ख़त्म कर दें. यानी कि ही जस्ट वांट टू इनवाइट हिम ऑन द क्रिसमस, वो उसको क्रिसमस पे इनवाइट करना चाह रहा है. But the stranger said no and again no, and the Iron Master saw that he must give in. लेकिन वो जो स्ट्रेंजर था, क्योंकि उसको पता था कि वो खतरे में पड़ जाएगा, तो इसलिए वो बार बार नो करता रहा. उसने उसकी हर बात के लिए ना कहा, फिर ना कह दिया, और फिर बार बार उसने उसको मना ही किया. और जो आयरन मास्टर था उसने सोचा, मतलब उसने देख लिया कि अब उसको गिव इन करना पड़ेगा, मतलब उसको छोड़ना पड़ेगा, वो नहीं मानेगा. It looks as though Captain Von Stale preferred to stay with you tonight, St. Johnstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel. अब वो उसको कहता है कि ऐसा लगता है कि जो कैप्टन वॉन स्टेल हैं वो तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं आज रात को. आयरन मास्टर जो ब्लैकस्मिथ है उसको कहता है कि ये जो कैप्टन वॉन स्टेल है ये आज शायद तुम्हारे साथ ही रहना चाहते हैं. और वो ऐसा कहता है और वो अपने हील्स में मतलब वो मुड़ता है और वापस चला जाता है. बट ही लाफ्ड टू हिमसेल्फ एंड ही वेंट अवे, एंड द ब्लैकस्मिथ हु न्यू हिम अंडरस्टूड वेरी वेल दैट ही हैड नॉट सेड हिज लास्ट वर्ड. वो मुड़ता है और ख़ुद ही अपने आप से हंसता है. जब वो जा रहा है तो हंसते, मतलब अपने आप में ही हंसते हुए जा रहा है जो आयरन मास्टर है. और जो ब्लैकस्मिथ है वो मतलब जो कि उसको बहुत अच्छे से जानता है, वो समझ गया था कि उसने अपने जो लास्ट वर्ड्स हैं, जो आखिरी शब्द है, वो अभी नहीं कहे हैं, मतलब वो फिर से वापस आने के लिए सोच रहा है. It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge, and a new guest came in, but this time it was not the Iron Master. क्या था, वो आधे घंटे पहले की बात भी नहीं, मतलब आधे घंटा भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही, मतलब आधा घंटा होने से पहले ही उन्होंने जो फौज था उसके बाहर, मतलब कैरेज जो घोड़ा गाड़ी थी उसके व्हील्स की जो आवाज़ थी, कैरेज मीन्स कार्ट, जो कार्ट थी उसके जो पहिए थे उसकी आवाज़ उनको फ़ौज के बाहर सुनाई दी. और इस बार एक जो नया गेस्ट था वो फ़ौज के अंदर आया, और वो कोई आयरन मास्टर नहीं था. इट वॉज़ नॉट आयरन मास्टर, वो आयरन मास्टर नहीं था. He had sent his daughter, apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. उसने अपनी जो बेटी थी उसको भेजा था. अपारेंटली वो बिल्कुल क्लियर था, इस उम्मीद में उसने उसको भेजा था कि उसकी जो परसुएशन पावर है, जो काउंसलिंग पावर है, जो उसको मनाने की पावर है, वो ज़्यादा अच्छी है. आयरन मास्टर की बात उसने नहीं मानी, तो उसने अपनी बेटी को भेज दिया ये सोचकर कि वो जो उसकी परसुएशन पावर है, उसकी जो मनाने की पावर है उसको, वो उससे ज़्यादा बेटर है, तो वो उसको ईज़िली मना पाएगी कि वो घर पर आ जाए. शी एंटर्ड फॉलोड बाय अ वैलेट. अब वो एंटर करती है, फॉलोड बाय अ वैलेट मीन्स फॉलोड बाय अ सर्वेंट, जो पर्सनल सर्वेंट होता है. तो वो अंदर आई और उसके पीछे पीछे जो उसकी सर्वेंट थी वो भी आई. कैरिंग ऑन हिज आर्म अ बिग फर कोट, और उसके हाथ में एक बड़ा सा फर का कोट था. शी वॉज नॉट एट ऑल प्रिटी बट सीम्ड मॉडेस्ट एंड क्वाइट शाई. मतलब बहुत ज़्यादा प्रिटी नहीं थी, बहुत ज़्यादा क्यूट नहीं थी, लेकिन वो बहुत मॉडेस्ट, मतलब बहुत सोबर और मतलब क्वाइट शाई, बहुत शर्मीली सी दिखने वाली थी. इन द फौज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग. मतलब फ़ौज में जब सब कुछ वैसा ही था जैसे कि मतलब अर्ली इवनिंग, मतलब जैसा कि शाम के टाइम पे था, तो फ़ौज में सारी चीज़ें वैसे ही थी. मास्टर ब्लैकस्मिथ एंड हिज अप्रेंटाइज स्टिल सेट ऑन द बेंच एंड द आयरन एंड चारकोल स्टिल ग्लोड इन द फर्नेस. मतलब वैसे ही था सब कुछ. जो आयरन मास्टर ब्लैकस्मिथ था वो, और उसका जो अप्रेंटाइज जो उसका ट्रेनी था, वो दोनों बिग बेंच पे बैठे हुए थे, और जो चारकोल था वो अभी भी ग्लोड कर रहा था, अभी भी मतलब जल रहा था फर्नेस के अंदर. द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ ऑफ द फ्लोर एंड ले विद द पीस ऑफ बिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हैट पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज.
मतलब वो जो स्ट्रेंजर था, वो जो अजनबी वहाँ पर आया था, जो वैगाबॉन्ड था, वो वहाँ पर लेटा हुआ था। स्ट्रेच हिमसेल्फ मीन्स वो वहाँ पर लेटा हुआ था फ्लोर के ऊपर। उसने एक जो पीस ऑफ पिग आयरन था, जो कच्चा आयरन का जो एक पीस था, उसने उसको अपने सिर के नीचे लगाया हुआ था। एंड जो उसका हेड था, उसने अपने फेस के ऊपर उसको डाला हुआ था, आईज को कवर किया हुआ था। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his hat. जैसे ही मतलब वो जो उसने वो जो As soon as the young girl caught sight of him, जैसे ही मतलब जो young girl थी उसने उसको देखा, she went up and lifted his hat. वो गई वहाँ पर, उसने जो उसका hat था उसको ऊपर उठा दिया। The man was evidently used to sleeping with one eye open. जो मतलब आदमी था उसको एविडेंटली मतलब क्लियरली वो हमेशा ही अपनी जो एक आँख थी उसको खोल के सोता था। दैट मीन्स वो चौकन्ना होकर सोता था हमेशा ही। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. Abruptly में सडनली, वो अचानक से उठ खड़ा होता है और मतलब वो काफ़ी डरा हुआ लगता है। वो एकदम से उठ जाता है और वो बहुत डरा हुआ लगता है। माई नेम इज़ एडला विल्मनसन, said the young girl. उसने वो जो यंग गर्ल थी उसने कहा कि मेरा नाम एडला विल्मनसन है। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight, and then I asked permission to come and bring you home to us. कहते हैं जो मेरे फादर थे उन्होंने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर रात को सोना चाहते हो फोर्ज में, और इसीलिए मैंने उनसे परमिशन ली और मैं यहाँ पर आ गई ताकि मैं तुम्हें घर ले जा सकूँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच ए हार्ड टाइम। उसको कहते कि मैं बहुत सॉरी हूँ कि तुम्हें इतना जो लाइफ में इतना जो हार्ड टाइम है वो देखने को मिल रहा है। शी लुक्ड एट हिम कंपैशनेटली, उसने उसकी तरफ बहुत ही सिंपैथेटिकली, कंपैशनेटली में सिंपैथी के साथ देखा, विद हर हैवी आइज, एंड देन शी नोटिस दैट द मैन वाज अफ्रेड। मतलब उसकी जो हैवी आइज थे उससे उसने उस जो इंसान था उसको बहुत ही मतलब सिंपैथेटिकली देखा, और देन शी नोटिस, उसके बाद उसने नोटिस किया कि जो आदमी था वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। Either he has stolen something or else he has escaped from jail, she thought and added quickly. अब उसको मतलब देखते ही उसको पता चल गया था, या तो वो जो इंसान है उसने कुछ चुराया है या फिर वो जेल से भागा हुआ है। जैसे ही उसने उसकी तरफ देखा तो उसने नोटिस किया कि वो जो स्ट्रेंजर था वो बहुत डरा हुआ था, तो उसी टाइम उसको पता चल गया कि या तो उसने कुछ चुराया है या फिर वो जेल से भागा हुआ इंसान। शी थॉट एंड एडेड क्विकली, इसीलिए उसने सोचा और अपनी जो बात थी उसको कंप्लीट किया। यू मे बी श्योर कैप्टन दैट यू विल बी अलाउड टू लीव अस जस्ट एज फ्रीली एज यू केम। उसने कहा कि यू मे बी श्योर, मतलब मैं तुम्हें श्योर करती हूँ कैप्टन कि तुम्हें हमारे घर से मतलब फ्री होगे, तुम किसी भी टाइम हमारे घर से जा सकते हो। जितना फ्रीली तुम हमारे घर में आ रहे हो उतना फ्रीली हम तुम्हें अपने घर से जाने भी देंगे, मतलब तुम्हारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे। ओनली प्लीज़ स्टे विद अस एवरी क्रिसमस ईव। सिर्फ तुम्हें क्या करना है कि हमारे साथ रुकना है, जो क्रिसमस इवनिंग है तुम आओ हमारे साथ, वो क्रिसमस इवनिंग है उसको सेलिब्रेट करो। शी said this in such a friendly manner that the rat trap peddler must have felt confidence in her. अब उसने ना उसको इतना फ्रेंडली मैनर में बोला था कि जो रैट ट्रैप पेडलर था उसने उसको उसके ऊपर कॉन्फिडेंस हो गया, उसको उसके ऊपर विश्वास हो गया। It would never have occurred to me that you would bother with me yourself, miss, she said. I will come at once. कहता है कि मतलब मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि मतलब मेरा आने से तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मिस। आई विल कम एट वंस, मैं तुम्हारे साथ अभी चलता हूँ। ही एक्सेप्टेड द फर कोट, उसने जो फर कोट था उसको एक्सेप्ट किया, विच द वैलेट हैंडेड हिम विद अ डीप बो, threw it over his rags and followed the young lady out to the carriage without granting the astonished blacksmith so much as a glance. उसने जो फर कोट था उसको एक्सेप्ट किया, जो कि जो वैलेट सर्वेंट थी उसने उसको हैंड ओवर कर दिया था डीपो, मतलब जो उसकी आईब्रोज थी उनको चढ़ाते हुए, और उसने जो वो फर कोट था उसने उसको अपने रैक्स के ऊपर पहन लिया, और वो जो यंग लेडी थी उसको पीछे पीछे वो कैरेज तक, जो कार थी वहाँ तक गया, और उसने बिल्कुल भी जो एस्टॉनिश्ड मतलब जो
अचंभित हो गया था ब्लैक स्मिथ, जो बहुत सरप्राइज हो गया था उनको देखकर। उसने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और वो वहाँ से उसके पीछे पीछे चला गया। बट वाइल ही वॉज राइडिंग अप टू द मैनर हाउस ही हैड ईविल forebodings means strong feelings that something is going to wrong। मतलब ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होना कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, उसको क्या बोलेंगे, फॉरबॉडिंग्स। लेकिन जब वो जा रहा था मैनर हाउस में तो उसको मतलब ईविल, बहुत घबराहट वाली, जो मतलब कि कुछ गलत होने वाला है, इस तरह की जो फीलिंग्स थी वो उसको आ रही थी। वाई द डेविल डिड आई टेक द फेलोज मनी ही थॉट। अब कहता है वो सोच रहा अपने आप के कि मैंने वो जो फेलो था, वो क्रॉफ्टर था, उसके पैसे क्यों चुरा लिए। उसने सोचा, नाउ आई एम सिटिंग इन द ट्रैप एंड विल नेवर गेट आउट ऑफ इट। वो कहता है कि मैं ट्रैप के अंदर फंस चुका हूँ, वो जो पंजरा है मैं उसके अंदर फंस चुका हूँ और मैं इससे कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊँगा। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। जो नेक्स्ट डे थी वो क्रिसमस इवनिंग थी, अगले दिन क्रिसमस की शाम थी। And when the Iron Master came into the dining room for breakfast, he probably thought with satisfaction of his old regiment comrade whom he had run across so unexpectedly। अगले दिन मतलब जो क्रिसमस का दिन था, जो आयरन मास्टर था वो डाइनिंग रूम में आया ब्रेकफास्ट करने के लिए, और वो अपने आप को सेटिस्फाइड फील कर रहा था कि फाइनली जो उसका पुराना रेजिमेंटल का दोस्त है वो वहाँ पर आ गया है, एंड जिसको कि वो अचानक से मिल गया था कि वो वहाँ पर आ गया है। देन ही सेड दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट सी टू इट दैट ही गेट्स अ लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स। मतलब कहता है कि पहले तो हम ये इंश्योर करेंगे कि वो कुछ ना कुछ खा ले। लिटिल फ्लैश ऑन हिज बोन्स मीन्स कि वो कुछ खा ले ताकि उसके जो मतलब हंग्री है तो ताकि जो उसकी बोन्स है वो थोड़ी सेटिस्फाइड हो जाए, यानी कि वो थोड़ा सा फ्लैश आ जाए बोन्स के ऊपर, मतलब वो थोड़ा सा अच्छा फील करे खाने के बाद। ही सेड टू हिज डॉटर, वो अपनी बेटी से कहता है कि सबसे पहले मैं ये देखूँगा कि वो आके खाना खा ले। हु वॉज बिजी एट द टेबल, जो कि टेबल को ठीक करने में बिजी थी, तो अपनी बेटी से ये बात बोलता है। एंड देन वी मस्ट सी दैट ही गेट समथिंग एल्स टू डू दैन टू रन अराउंड द कंट्री सेलिंग रैट ट्रैप। कहते उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसके लिए और क्या कर सकते हैं, कि मतलब उसको जो ऑल ओवर कंट्री है उसमें वो जो रैट ट्रैप्स हैं उनके बेचने के अलावा वो और क्या कर सकता है। टुडे वी विल डू दैट मच ओनली। आज हम इतना ही करेंगे, रेस्ट वी विल डू टुमारो। ट्राई टू रीड द चैप्टर and if you are having any problem you can call and ask anytime. Thank you and have a nice day.